چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ آج بھی مجھے بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. امید ہے کل ملاقات ہو جائے گی. ملاقاتیں ہونے سے حالات میں بہتری آ سکتی ہے. اگر ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے تو اسے دوریاں بڑھیں گی. پارٹی بانی پی ٹی آئی کے ہدایات پر چلتی ہے, سوشل میڈیا پر نہیں. ہمارا ریاست مخالف ایجنڈا نہیں, ہم آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اچھی بات ہے. مشن نور کا شوشہ پتہ نہیں کس نے چھوڑا ہے, ہمیں نہیں معلوم, اس کا پارٹی سطح پر اعلان نہیں کیا گیا. تو نہیں ہونے دی جیل. آج ٹرائل ہے, ٹرائل میں نہیں جانے دیا. ریزن تو یہ نہیں بتاتے, لیکن انہیں بھی امید ہے کل ملاقات ہو جائے گی خان صاحب سے. دیکھو ملاقات ہونی چاہیے, ٹرائل پہ بھی جانا چاہیے. اس میں عدالتوں کا آرڈر ہے, عدالت کا آرڈر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جب ملاقاتیں ہوگی, سیاسی لوگوں کی بھی ملاقات ہوگی, وکیلوں کی ملاقات ہوگی, خان صاحب کی ملاقات ہوگی, تو حالات بھی تھوڑے سے بہتر. کمیٹی فیصلہ کرتی ہے, خان صاحب کی ڈائریکشن آ جاتی ہے, اور ہم جو بھی سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے خان صاحب بتاتے ہیں, اور ہم اس کا فارمل اناؤنس, ہمارا فوج بھی ہماری. پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے MNAs اور MPAs کو کل اڈیالہ جیل طلب کر لیا. قیادت کی جانب سے تمام MPAs اڈیالہ کے باہر عوامی اسمبلی لگانے کی ہدایت. ذرائع کے مطابق عوامی اسمبلی میں بانی چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور کی جائے گی. قیادت اور کارکنان کو دی جانے والی سزاؤں کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی. عوامی اسمبلی میں سیلاب کے بعد کی صورتحال, کسانوں کو درپیش مسائل اور بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بات کی جائے گی. سینٹرل پنجاب کے ہر MNA, MPAs, ٹکٹ ہولڈرز, سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ 20-20 کارکنان بھی لانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. علیمہ خان کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا ہے. لگتا ہے کہ اگلی 2 یا 3 سماعتوں میں کیس ختم ہو جائے گا اور بانی PTI اور بشرا بی بی رہا ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ بانی PTI نے 27 ستمبر کے جلسے کی ذمہ داری علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر کو سونپی ہے. علیمہ خان نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کو بھی انتہائی اہم قرار دیا. انہوں نے کہا کہ بانی PTI کا کہنا ہے کہ محسن نقوی نے کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے. جو انہوں نے گواہ پیش کیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا, اور پچھلے ہفتے ہی یہ تو کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا. جو ہمارے لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ اگلی 2-3 ہیئرنگز میں یہ کیس کی ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ پوری ٹیم کو انسٹیبل کر دی ہے. یہ جو محسن نقوی نے 27 ستمبر کے لیے جو پشاور کا جلسہ ہے, آپ نے نکلنا ہے. علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر یہ مل کر اس کو کامیاب کریں گے. سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو اس وقت کانٹریکٹ ہوا ہے, کہتے یہ پہلے بھی بات چیت ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھی اور یہ خوشائن چیز ہے. بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت. آخری 2 گواہان کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا. مقدمے کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں کی. سماعت کے دوران نیب افسر محسن ہارون, اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA شاہد پرویز کا بیان قلم بند کیا گیا. دونوں گواہان کے بیانات پر 24 ستمبر کو وکلا صفائی جرح کریں گے. مقدمے میں استغاثہ کے تمام گواہان کی شہادت مکمل ہو گئی. مزید کوئی گواہ پیش نہیں کیا جائے گا. مجموعی طور پر 20 گواہان کی شہادت قلم بند کی گئی ہے. مقدمے میں 18 گواہان کے بیانات پر جرح بھی مکمل کی جا چکی ہے. سماعت کے دوران بانی PTI بشرا بی بی کو جیل سے عدالت پیش کیا گیا. بانی کی تینوں بہنیں اور بشرا بی بی کی بیٹی مہرونسا احمد بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں. جعلی ڈگری کیس میں سابق MNA جمشید دستی کو 7 سال قید کی سزا. ملتان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے جمشید احمد دستی کو جعلی ڈگری کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی. الیکشن کمیشن کی جانب سے جمشید دستی کے خلاف جعلی ڈگری کے الزام میں استغاثہ دائر کیا گیا تھا, جس میں اختیار کیا گیا کہ انہوں نے 2008 کے عام انتخابات میں مدرسے کی BA کی ڈگری کی بنیاد پر قومی اسمبلی کے حلقہ NA 178 مظفر گڑھ سے الیکشن میں حصہ لیا. استغاثہ کے مطابق جمشید دستی نے اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ مدرسے کی ڈگریاں منسلک کی تھیں. ان ڈگریوں کا کوئی ریکارڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس موجود نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ جمشید دستی نے حقائق چھپا کر آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کی, لہٰذا انہیں نااہل قرار دیا جانا چاہیے. عدالت نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد جمشید دستی کو مجرم قرار دیتے ہوئے 7 سال قید کی سزا سنائی. PTI رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ کے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے. عدالت نے عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. واضح رہے کہ عمران اسماعیل تھانہ بارہ کہو کے مقدمے میں نامزد ملزم ہیں. بانی پاکستان تحریک انصاف اور متعدد PTI رہنما متعلقہ مقدمے میں بری ہو چکے ہیں.
बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अदालत ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का असद कैसर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म, जबकि परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। केस पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीटीएम में लाहौर के ऑफिसर अब्दुर्रहमान दौरान ड्यूटी दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गए। मरहूम बतौर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर मुल्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक अब्दुर्रहमान गुज़श्ता एक माह से सैलाब इमरजेंसी ड्यूटी पर मुसलसल मामूर थे और उन्होंने मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में रेस्क्यू ऑपरेशंस में भरपूर किरदार अदा किया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद और डायरेक्टर जनरल पीडीएमए इरफान अली काठिया ने अब्दुर्रहमान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। डीजी पीडीएमए ने कहा कि मरहूम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने मुश्किल हालात में अवाम की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बहावलनगर के टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्लड रिलीफ कैंप पहुंची हैं, जहां उन्होंने मुतासरा खानदानों और सैलाब ज़दगान से मुलाकात की। वज़ीर आला ने कैंप में पैदा होने वाले बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैंप में पैदा होने वाले बच्चे का नाम नवाज शरीफ और बच्ची का नाम मरियम नवाज रखा गया। वज़ीर आला ने सनअतजार मरकज़ का भी दौरा किया है, जहां उन्होंने सिलाई कढ़ाई करने वाली खवातीन से खुशगवार गुफ्तगू की और खुद सिलाई मशीन पर कपड़े की सिलाई और सुई से कढ़ाई करके खुशी का इजहार किया। मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन मर्द और खवातीन से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया, बच्चों से शफकत का इजहार किया और उनके साथ बैठ कर बातें की। मासूम बच्चों ने वज़ीर आला को अपनी बनाई हुई पेंसिल स्केचेस पेश किए, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। वज़ीर आला ने खवातीन और बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए और कैंप के आर्जी अस्पताल में मरीजों की इयादत की। सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर हम सैलाब से बच गए। पंजाब में ना तजर्बाकारी के बाइस सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो साबित होगा कि पंजाब में ज्यादा नुकसान मनसूबाबंदी न होने के बाइस हुआ। अज़मा बुखारी को कोई जवाब देना नहीं चाहता। किसानों को नुकसान पहुंचाकर गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत खुद को अक्ले कुल ना समझे। हम इत्तेहादी नहीं लेकिन हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। इस हफ्ते पिंक स्कूटीज खवातीन को दी जाएंगी। डबल डेकर बसें भी जल्द कराची पहुंच जाएंगी। ईवी बसें और लाल बसें अब पाकिस्तान में तैयार होंगी। पंजाब में इस वक्त सैलाब मुतासरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक खुल के एक अपील की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। 2008 से पहले पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब ने जो पॉलिसी दी, पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है। मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है। सिंध के बाद अभी भी जो है 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने, हुकूमत सिंध की जानिब से भी एक धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में सरमायाकारी के हजम, इक़्तिसादी और तजारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए लंदन में आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तमाम अहम शोबों में सरमायाकारी और तजारत को फ़रोग देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़्म और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं जिनमें बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। सरमायाकारी के साथ साथ तजारत को भी फ़रोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है ताकि हमारी दरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा हो सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारतों को टारगेट दिए हैं और तमाम ज़ेर तकमील मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरवकार लाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि काबिल अमल मंसूबों की निशानदही करके उनको अमली शक्ल देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। इस मकसद के लिए मुस्तक़बिल को मद्देनजर रखते हुए एक रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा बनाया जाए ताकि अपने अहदाफ की हसूली के लिए एक मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ा जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा और उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। हमारी जारी मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को एक नई समत दी है और इस जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। हुकूमत का सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को बुलाए जाने का इम्कान। इजलास 2 हफ्ते तक जारी रखने पर मुशावरत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे। कौमी असम्बली इजलास में पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे पे ऐवान को एतमाद में लिया जाएगा। अमरीकी नाज़िम अल अमूर नेटली बेकर की अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नाज़िम अल अमूर ने अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों की मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर और तुर्क कौंसल जनरल की अलग अलग मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत को सिंध में खुशामदीद कहा। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बरादर मुस्लिम ममालिक हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फरोग की ज़रूरत है। तुर्क कौंसल जनरल को मुराद अली शाह ने यकीन दहानी कराई कि सिंध हुकूमत तुर्की के साथ भरपूर ताउन करेगी। तुर्किया के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दे दी। कहा, सूबे में सड़कों, तवानाई और पानी के शोबों में मुतादिद मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गड्डापुर की ज़ेर सदारत इजलास में हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में गैर मियारी और गैर कानूनी मराकज़ सेहत के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ तेज़ करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि हेल्थ केयर कमीशन की इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए 24 मजीद इंस्पेक्टर्स भर्ती किए गए हैं, जबकि लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने के लिए लाइसेंसिंग रूल्स काबीना से मंजूर करवाए गए हैं। इस दौरान हेल्थ केयर कमीशन के मजीद 10 ऑफिस कायम किए गए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर ने कहा कि सेहत आमा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। सेहत आमा के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर, सैफरान और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम ने कहा है कि मजलूम कश्मीरी गुज़श्ता 7 दिहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर का शिकार है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ ने और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने क़यादत ने पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियत की हैसियत को पूरी दुनिया में मनवाया है। अब भारत कश्मीर के मसले को मुर्दा नहीं कह सकता। पूरी दुनिया आज मान रही है कि मसाइल का हल जंगों में नहीं है। 4 जंगें लड़े, वो मसाइल का हल नहीं, मसाइल का हल है मुज़ाकिरात और मिलकर बैठने से। कश्मीरियों की मकबूजा जम्मू कश्मीर में, ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो हमारे बहनें और भाई रह रहे हैं, का हक यूनाइटेड नेशन के सलामती कौंसिल के रिजोल्यूशंस के तहत उनका हक उनको दिला दे। मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़ियादत में जिस तरह पाकिस्तान की पासपोर्ट और पाकिस्तानियत का हैसियत पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं बुलंद किया हुआ है। तलाक को 2 बरस हो गए। मारूफ अदाकारा और मुसन्निफा मीरा सेठी की एक पॉडकास्ट में तस्दीक। दौरान इंटरव्यू मीरा सेठी ने अपनी ज़िंदगी के हवाले से खुलकर बात की है और अपने तजर्बात नाजरीन के साथ शेयर किए। उनका कहना था कि तलाक के बाद का वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ड्रामे की शूटिंग में मसरूफ़ हो गई तो इससे निकलने में मदद मिली। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने ड्रामे का डायलॉग भी याद किया कि एक तलाक याफ्ता औरत माशरे के लिए कांटा बन जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में साइंस और आर्ट्स के मॉडल्स की नुमाइश तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां तख्लीकी जहन, साइंसी सोच और फनकाराना सलाहियतें एक साथ जलवागर हुई, जिसमें स्कूल के बच्चों समेत उनके वालिदैन ने भी खूब शिरकत की और बच्चों की दिलचस्पी और उनकी मेहनत पर खूब दाद दी। देखते हैं राशिद हुसैन की ये रिपोर्ट। जी हाँ, यहाँ हो रहा है एक शानदार साइंस और आर्ट्स की नुमाइश, जहाँ तख्लीकी ज़हने, साइंसी सोच और फनकाराना सलाहियतें एक साथ जलवागर हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि इस नुमाइश का मकसद नौजवान तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देना, तहकीक और तजर्बे की हौसला अफजाई करना और फन के जरिए इजहार ख्याल को नई राहें देना है। जो बच्चे कल के डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी भी ऐसे इस हवाले से या फिर के हवाले से जो उन्होंने आज अपने जो है मॉडल्स की नुमाइश या प्रोजेक्ट की नुमाइश की, ताकि उनसे उनकी खूबियां इनहेंस हो। इस खूबसूरत तकरीब में तलबा ने अपनी मेहनत और जहानत का मुंह बोलता सबूत पेश किया है और यही तलबा हमारा यानी बलूचिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। फिल्ट्रेशन ही नेचुरल फिल्ट्रेशन, जैसे पानी फिल्टर करके पहले पत्थरों से गुजरता है, दूसरा तो मतलब छोटे पत्थरों से गुजरता है, फिर ट्रायल से गुजरता है करके फिर नीचे फिल्टर होके। द स्मार्ट स्कूल सिटी कैंपस तालीम के साथ साथ हुनर, तख्लीक और तहकीक को भी अहमियत देता है और आज की नुमाइश इसी अज़म का अमली तस्वुर है। कैमरामैन जावेद बलोच के साथ राशिद हुसैन, ABN न्यूज़, क्वेटा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN।